So what are the two factors affecting the friction? The surface and the weight. The surface is rough, then it will cause more friction. If the surface is smooth, it will cause less friction. Next is bete types of friction. Now this answer I want from the online students. Who will tell me what is static friction? Types of friction. Today we have to start, and I have given you glance over it. The one is static friction. Other one, sliding friction, and is rolling friction. Static friction, rolling friction, sliding friction. Now, who will tell me what is static friction? What is that? Anyone from the students sitting online? यही गिने चुने बच्चे आंसर देते हैं. मानसी, कृतिका. Okay. Why not Guntas? स्टैटिक फ्रिक्शन वो वाली जिसमें नॉर्मल वॉकिंग होती है. क्या बेटे? गूगल बाबा से क्या पूछा आपने? हरी आप दोबारा से बोलो. यस बेटे. Static friction. If I am talking about bete, if I am standing here and our box is lying on the ground. I want to push that box. There is some kind of frictional force operating which opposes that force when the object is at rest. Okay? And you are pushing an object on a plane surface. The force which opposes it is called static friction. Okay? And when you are sliding that box, I have given you the example of book yesterday. When you are sliding or making a surface like a ramp, कभी आप हॉस्पिटल्स एंड ऑल जाते हो तो रैम्प्स लगे होते हैं, है ना? तो रैम्प्स में आप जल्दी से वॉक करते हो. So the frictional force which opposes when the object is sliding, that is known as sliding friction. ठीक? And when the object is rolling, the frictional force which opposes the motion of a rolling object is called a rolling friction. So I have given you the example. Why this notebook? Give me a notebook. Again, I am giving you the example. And you will do the definition yourself. So, अगर मैंने ये स्पेक्स केस को बस कर जा, this is the ethanol. This notebook I am having bete with a case here. If I will slide this case, तो मुझे अगर पुश करूंगी तो मुझे टाइम लग रहा है. ये देखो रुक रहा है. So this type of friction is known as static friction. Now, what I have done, I have converted this notebook into a slide. ठीक है? अगर अब हम छोड़ेंगे तो ये अपने आप जा रही है. देखो ठीक है. तो अब जो फ्रिक्शन ऑपरेट हो रही है दैट इज कॉल्ड बेटे स्लाइडिंग फ्रिक्शन. अब हम ये देख रहे हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन. और अगर इसके नीचे मैं क्या लगा दूं? रोल्स. ठीक? तो दैट इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन which is lesser than even sliding and static friction. Okay? ठीक?
when object is rolling over other surface which is in the contact with us, with that surface, the friction which is getting operated is known as sliding or rolling friction. When the object is sliding over other surface in the contact, the frictional force which is come into operation is known as sliding friction. You have the books, you can read the definition, you must know the concepts very well. Okay, show me the next topic in your book. So we have covered type of the frictions. Now next is bete friction a necessary evil. Evil है, हमें वियर एंड टीयर होता है, सामान का टूट जाता है, सब कुछ होता है, मगर हमें बहुत जरूरी है कि ये फ्रिक्शन हो. अगर फ्रिक्शन ना हो तो नेसेसरी इवल का मतलब है कि देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस, नेसेसरी भी है और हमारे लिए उसके डिसएडवांटेजेस भी है. पहले तो हम एडवांटेजेस की बात कर लें, ठीक है. नेसेसरी इविल, इविल का मतलब होता है हमें नुकसान दे रही है वो, मगर वो जरूरी भी है. उसका नुकसान देना हमें वो बहुत जरूरी है. दैट इज व्हाई इट इज वेरी मच नेसेसरी इविल. व्हाई? लेट अस सी. फर्स्ट, आई एम राइटिंग विद द चॉक. आई एम राइटिंग विद द चॉक. अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ना होती है, आई कांट राइट. I can't write. I am walking on the floor. If there is no friction, I can't walk. I will just slide. और गिरती रहती, चोट लग जाती. अगर मैस्टिक बर्न होती है, you have done in the previous chapter कि मैस्टिक में क्या था? There are the chemicals, phosphorus था जो ignite होता था, है ना? एंटीमनी था, क्लोरोक्रोमेट. तो ये सारे जो सब्सटेंस मिलके मैस्टिक को बर्न करते थे. कैसे करते थे? मैस्टिक लेते थे आप, उसको ऐसे, फोन बहुत आने, ठीक है, यू टेकन द मैस्टिक और उसको ऐसे हम करते हैं. अगर दोनों में फ्रिक्शन ही ना हो, इंटरलॉकिंग ही ना हो, तो ऐसे हो जाए बस. अगर आप अपने हैंड्स को रब करते हो तो देयर इज, सर्दियों में आप रब करते हो, तो आप भी हैंड क्यों रब करते हो बेटे? क्योंकि आप चाहते हो कि उसमें से हीट रिलीज हो और आपको ठंड कम लगे, गर्मी पैदा हो. वो क्यों होती है? क्योंकि फ्रिक्शन होती है. जब बेटे फ्रिक्शन ऑपरेट होती है तो वह उसके यूजेस भी हैं. दैट एनर्जी वेस्ट होती है ना, लॉस्ट होती है. आप एनर्जी लगा रहे हो तो एनर्जी बाहर आ रही है, ठीक. सो व्हाई फ्रिक्शन इज नेसेसरी इवल? बिकॉज वी कैन वॉक ड्यू टू दिस फ्रिक्शन. देयर इज इंटरलॉकिंग ऑफ आवर shoes or what we are wearing with the floor and we can walk. But एक तरफ तो हम वॉक कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये इवल क्यों है? क्योंकि ये हमारे जो शूज के जो आप वियर करके रखे हुए हैं, समझो बुक्स में गिवन है, ठीक है, उनको खराब कर रही है ये. वो घसते हैं. क्यों घसते हैं? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ऑपरेट होता है. तो एक तरफ तो हमने यूज बोल दी कि वी आर वॉकिंग because of this frictional, but because of this friction our soles got damaged. दोनों point, there is advantage, there is a disadvantage. So this is necessary, but it is also ruining us, ठीक है, ruining our soles. चौक से हम राइट कर रहे हैं, we are writing with the chalk. चौक रब अगर राइट कर रहे हैं तो चौक खत्म भी हो रहा है, ठीक है. We are rubbing our hands. There is energy generated because of friction, but there is loss of energy from our body, isn't it? So friction is necessary for us.
but it is also affecting us. That is why हम कहते हैं फ्रिक्शनल एक evil है, एक कर्स है हमारे लिए, मगर वो जरूरी भी है होना। नहीं होगी तो हमारे बहुत सारे काम रुक जाएंगे। समझ आ रही? हम पैडल कर रहे हैं, हम पैडल ही करते रहेंगे, हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा, हम गिर जाना है। मगर इसी फ्रिक्शन के कारण हमारे टायर घस रहे हैं। मैम योर वॉइस इज श्रिंकिंग। मैं वॉइस का क्या करूं? So I was telling them that friction is necessary evil. Friction is necessary evil. Why? Because it is necessary to us and it affects our life in the bad way also. ठीक? Like we walk. Why we are walking? Because there is force of friction operating. Otherwise we have fallen down. But if we are walking easily, but in the opposite way it is working and it is damaging the soles of the shoes. So we have to buy new shoes again and again. But if there is no friction, we can't walk. We are cycling, we are driving, we are putting a brake. ब्रेक भी क्यों लगती है? क्योंकि उनमें फ्रिक्शन है। अगर ब्रेक और टायर्स के बीच में फ्रिक्शन ना हो तो वो स्लाइड ही कर जाए टायर ब्रेक से। आपने ब्रेक लगाई, वो ब्रेक जाके टायर को लगी, उसमें इंटरलॉकिंग हुई इसी टाइम, दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स। अगर वो इंटरलॉकिंग ना हो तो आपके फिर हम ठीक है। तो देयर शुड बी फ्रिक्शनल फोर्स ऑपरेटिंग, बट एट दैट टाइम देयर इज डैमेजिंग ऑफ योर ब्रेक ऑल्सो, योर टायर्स ऑल्सो। ठीक, you are cycling somewhere, you can slow down the cycle, you are not pedaling for some time, your cycling gets slow. Why? Because your tires get interlocked in the irregularities of the road. If there are no irregularities, no force of friction will be there, you can't stop the cycle. ठीक? And you will go on moving and moving, but at the same time your tires getting damaged. बेटे ब्रेक रिम भी तो, रिम में भी तो प्लास्टिक होता है ना, तो वो इंटरलॉक हो जाती है रिम के साथ। अगर वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो फिर आपकी टायर चलता ही रहे। कभी कभी हमें ब्रेक भी नहीं लगाते ना, पैडलिंग रोक ही देते हैं, तब भी साइकिल स्लो होता है कि नहीं होता? क्यों होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण। That is also force of friction. So getting the point, what is force of friction? I am writing on a board, I am stopping due to again friction. If I am not able to write, what is the reason? Because there is no frictional force. So there must be force of friction. अगर हम hand rub कर रहे हैं, there is heat generated again because of फ्रिक्शनल। देखो जब हम हैंड रब करेंगे तो दोनों हैंड्स में जो इरेगुलरिटीज हैं वो इंटरलॉक हो जाएंगी। जब इंटरलॉक होंगी वो एक दूसरे को आप छुड़ाओगे, जब छुड़ाओगे तो एनर्जी वेस्टेज होगी, एनर्जी निकलेगी, आपके हाथ गर्म होंगे, फिर आपकी बॉडी की हीट एनर्जी निकली, आप में एनर्जी कम हुई, हमें चाहिए भी है पर हमारी एनर्जी भी कम हो रही है, तो हमें खाना और खाना पड़ेगा। किसमें बेटे? मून में तो कोई, जहाँ पे एटमॉस्फेयर कम है बेटे वहां पे फ्रिक्शन है ही नहीं। फ्रिक्शन सिर्फ किसी मैटर के कारण, जैसे कि अगर हम एयर में या हम किसी लिक्विड में जा रहे हैं, इस तरह की फ्रिक्शन कहा जाता है फ्लूइड फ्रिक्शन। वी विल डू फर्दर, ठीक है। फोर्स तब कहा जाता है ड्रैग फोर्स, तो वहां पे भी फ्रिक्शनल फोर्स ऑपरेट होता है।
यहाँ पे जो ये सॉलिड स्टेट में फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस टाइप की फ्रिक्शनल है, जो लिक्विड स्टेट में फ्रिक्शनल फोर्स है वो अलग टाइप की फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो सब में ही होगी, बस वैक्यूम में नहीं होगी। बेटे जब दो सरफेसेस, सरफेस के अंदर डेप्थ में जाओ तो आपको क्या नजर आएंगे? मॉलिक्यूल्स। जहां पे मॉलिक्यूल्स ही नहीं होंगे वहां पे फ्रिक्शन कहाँ होगी? जहां पे है ही वैक्यूम वहां पे फ्रिक्शन नहीं हो सकती। समझ आ रही है? तो यू कैन एक्सप्लेन व्हाई फ्रिक्शन इज नोन एज नेसेसरी इविल। ठीक है, इट इज वेरी इजी। सो कैन यू टेल मी द advantages now, advantage of the friction in day to day life? फ्रिक्शन इन द डे टू डे लाइफ, अगर आपसे कोई एडवांटेजेस पूछे दैट वी हैव डन। अब मैं आपसे क्वेश्चन, आई विल आस्क यू व्हाई वी अप्लाई द ऑयल ऑन दिस डोर। तो इससे क्या हो गया? इससे क्या हो गया? वी हैव रिड्यूस द फ्रिक्शन। ठीक है, इन द एडवांटेजेस यू कैन राइट, डिसएडवांटेजेस राइट। नाउ ये दोनों चीजें लिखोगे जब आपके आ जाएगा व्हाई फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। बेटे जब फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल पूछा जाए तो दोनों ही होती हैं, इसकी नीड है मगर ये हमारे साथ ये कर रही है। ठीक है, नेसेसरी है हमारे लिए मगर ये नुकसान भी पहुंचा रही है, दैट इज व्हाई इट इज नेसेसरी, क्योंकि इसके बिना हम ये काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब हम कैसे रिड्यूस करेंगे? कभी कभी हमें रिड्यूस करना पड़ता है। हाउ वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन? हमने यहाँ पे लुब्रिकेंट्स लगाए ऑयल के ऊपर, डोर के ऊपर। वी हैव पुराने, जब आपकी घर पे वो क्या कहते हैं, ये बंद करते हो आप, डोर्स क्लोज करते हो, गेट्स एंड ऑल, तो आपके कभी कभी अभी रेनी सीजन में यू कांट लॉक इजिली, है ना, यू कैन नॉट ओपन द डोर और क्लोज द डोर, तो मम्मा कहते हैं ऑयल लगा दो यहाँ पे, और इफ देयर इज ग्रीस, ग्रीस लगा दो, क्योंकि रस्टिंग के कारण रस्ट लग जाती है इस सीजन में, तो सरफेस बहुत इरेगुलर हो जाता है। तो हम कैसे रिड्यूस करते हैं? तो फर्स्ट रिड्यूस कैसे कर सकते हो? बाय अप्लाइंग द लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स में क्या जाएंगे? ऑयल, ग्रीस। ठीक है, सो वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन बाय अप्लाइंग द लुब्रिकेंट्स। बेटे जहाँ पे वैक्यूम है, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछना? I'll tell you afterwards. तो when you apply the lubricants, तब होता क्या है, जैसे खड्डों में जब पानी भरते हैं तो वो खड्डे भर जाते हैं, खड्डों में जब मिट्टी भरेंगे तब भी भर जाएंगे। वैसे ही जब हम लुब्रिकेंट्स अप्लाई करते हैं तो इरेगुलरिटीज हैं वो भर जाती हैं। भरने से क्या होता है? द सरफेस गेट स्मूथ। अब आपके जो पुराने दरवाजे हैं आवाज नहीं करेंगे क्योंकि आपने ऑयल लगा दिया। ऑयल से क्या हो गया? द irregularities get filled up and thus force of friction get reduced। अब फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, इतना लगेगा नहीं लगेगा। और कहाँ हम लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं? साइकिल के चेन में यूज कर सकते हो, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। We use in industries, in the machineries. We apply greases and the lubricants. Why? Again, the old part of the machineries wear and tear से खराब हो जाते हैं, तो हम बीच बीच में lubricants ऐड करते जाते हैं, क्योंकि जब दो पार्ट्स आपस में रगड़ते हैं तो रबिंग से क्या हो जाता है? There is generation of heat,
when there is loss of heat, the efficiency of the machinery get reduced. ठीक है, जब दो चीजें आपस में रब होंगी तो वहां पे एनर्जी रिलीज होगी. जैसे हाथ रब किए तो एनर्जी रिलीज हुए. आप पैर भी सर्दियों में जोर जोर सी बेड पे लगाते हो ऐसे कि गर्म हो जाए तो एनर्जी रिलीज होती है. तो आपकी बॉडी की एनर्जी इस टाइम कम हो रही होती है. फिर तो खाना खा लेता है. ठीक है. इन द सेम वे जब मशीनरी के बेटे पार्ट्स रब होते हैं आपस में तो उनके पार्ट्स का वियर एंड टियर होता है, खराब होते हैं. हाँ, ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी, एंड दिस लॉस ऑफ एनर्जी इज ड्यू टू फ्रिक्शन. तो टू रिड्यूस फ्रिक्शन हम क्या करते हैं? अप्लाई लुब्रिकेंट. अगेन वी अप्लाई द लुब्रिकेंट. It is written internet connection is unstable. Any doubt on the online classes? Students sitting there. Any doubt, bete? Can you tell me more of the way you can increase, decrease the friction? One is lubricant we have done. Anyone more? There is a lubricant. एक तो मैंने lubricant अप्लाई कर दिया फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए. और मैं क्या कर सकती हूँ? ऑयलिंग बेटे, ऑयलिंग लुब्रिकेंट ही होते हैं, ग्रीस भी लुब्रिकेंट से होते हैं सब्जी. इसके अलावा आप एक गेम प्ले करते हो कैरम बोर्ड, उसके ऊपर क्या डालते हो? ठीक है. तो जब आप पाउडर स्प्रिंकल करते हो कैरम के ऊपर तो क्या होती है? तो बाय स्प्रिंकलिंग द पाउडर ऑन द कैरम्स और कोई भी सरफेस के ऊपर हम गए, यहाँ पे भी अगर आपका पाउडर गिरा होगा तो वी विल स्लाइड एंड वी विल फॉल डाउन. व्हाई? बिकॉज देयर इज फिलिंग ऑफ द इरेगुलरिटीज. जब हमने फ्रिक्शन रिड्यूस करनी होती है तो हम जो इरेगुलरिटीज है उसको फिल करते हैं लुब्रिकेंट्स ऐड करके, पाउडर स्प्रिंकल करके. ठीक है. So you can write by sprinkling the powder. और कोई point? If anyone is having? Yes, bete online also can give the. Where are the participants? Yes. हाँ, water, yes, water is also a good example. हाँ, water से भी तो irregularity feel होती है, पर इससे हम गिर जाएंगे. This is not the beneficial. हम beneficial वाली बात करें जहाँ पे हमें benefit मिल रहा है, इसलिए हम friction को reduce कर रहे हैं. और कहाँ benefit मिलता है? चलो, आप कई कई चीजों पे increase भी करते हो friction. किन चीजों में? अब आपसे मैं अगर क्वेश्चन पूछूं where and why friction should be increased, जैसे हमने कहा we will reduce the friction कि हम wear tear रोक सकें. ठीक. ऑयलिंग करके हमारे डोर्स की ग्रीसिंग होती है उनको रोक सकें, खुल जाए. हम इंक्रीज भी करते हैं कभी कभी. किन पॉइंट्स पे इंक्रीज करते हैं? अब मैं आपसे पूछूं हाउ टू इंक्रीज द फ्रिक्शन. तेरे शूज में ना मैं ग्रूव्स लगा दूंगी. ठीक है. जो शूज है आप देखा करो, बिल्कुल प्लेन नहीं होते नीचे से, है ना. देयर आर सर्टेन ग्रूव्स या लाइंस लगी होती हैं बीच में, लगी होती है ना. वो किस लिए लगी हैं? कि फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज हो, ताकि आप गिरो ना. अगर जब शूज लेते हैं जो प्लेयर्स होते हैं, जो फुटबॉल प्लेयर, उनकी स्पाइक्स लगी होती हैं, वो देखिए आपने नीचे, क्योंकि वो स्पाइक्स क्या करती हैं? सॉइल के साथ इंटरलॉक हो जाती हैं, वो ग्रिप बना देती हैं और गिरते नहीं है. हाँ, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे आप रिड्यूस करोगे फ्रिक्शन. आपसे बेटे इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं.
कि why the shoes of the football player have spikes? To increase the friction. तो अब मैं बताऊं how to increase the friction. ये तो reduce कर लिया. Let us see the points. How to increase the friction. The friction you can write, it can be increased, it is given. The shoes are grooved by making shoes are grooved or have spikes. In case of the football player, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ऐसे, इसमें बेटे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते, बैठ जाओ पे कि आपकी शूज में ग्रूव्स क्यों है बेटे शूज में ग्रूव्स, स्टैंड अप ग्रूव्स क्यों है शूज में? तो हम क्या हो जाएंगे? क्यों गिरोगे आप? क्यों गिरेंगे हम? बेटे ग्रूव हो गए, योर आंसर विल बी प्रॉपर, ये लिखोगे because of this groove there is interlocking of the shoes with the surface and thus it will increase the friction and help us to walk and prevent fall of the person. See bete, you will be in pre-board class next year. I will so you must be know